Assalamualaikum. It's my channel Smart Medical Study. My name is Arish Fatma, and in this lecture of Therapeutic Exercises, chapter number 17, हमने आज पढ़ना है रोटेटर कफ रिपेयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। रोटेटर कफ रिपेयर एंड द पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में हम पहले देखेंगे कि रोटेटर कफ टेयर्स आर कैटेगराइज्ड एज either partial thickness or full thickness tears. Either type may require the surgical management. दोनों के अंदर ही surgical management की need होती है। Partial thickness tear extend inferiorly or superiorly through only a portion of tendon from either the acromion जिसमें हमारे पास बरसा आता है और the humeral surface of the tendon जो हमारे पास एक articular surface है। Full thickness tear is a complete tear extending between the superior and the inferior surface of the tendon। जो कि full thickness हमारा tear होता है वो complete superior and the inferior surface of the tendon का tear होता है। Both type of tears can be oriented either parallel or perpendicular to the primary orientation of the tendon fibers। हमारे पास indications क्या हो सकती हैं सर्जरी की? Primary indications for surgical management of a rotator cuff tear confirmed by imaging are pain and impaired functions are as the result of the following: partial thickness or full thickness tear of the rotator cuff tendons with irreversible degenerative changes in the soft tissues. Some patient with the near stage 2 lesion and most with the near stage 3 lesion who continue to be symptomatic, अगर उनके अंदर symptoms continue हैं and have the functional limitation after a trial of नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के बाद भी उनके अंदर क्या है फंक्शनल लिमिटेशंस है आर द कैंडिडेट्स फॉर द सर्जरी। वो हमारे पास सर्जरी के पेशेंट्स होंगे। एक्यूट ट्रॉमेटिक रिपेयर ऑफ द रोटेटर कफ टेंडन्स दैट मे बी कंबाइंड विद द एवल्शन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी labral damage or acute dislocation of the GI joint in the individual with no known history of prior cuff injury। फुल थिकनेस की बात की जाए तो ट्रोमेटिक टेयर्स अकर मोस्ट ऑफन इन द यंग एंड एक्टिव अडल्ट्स। तो ये यंग और एक्टिव अडल्ट्स में हो सकता है मोस्ट ऑफन। सर्जिकल रिपेयर इज़ नॉट इंडिकेटेड इन दी पेशेंट्स हु आर एसिम्टोमेटिक। अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है उसके अंदर सर्जिकल रिपेयर इंडिकेटेड नहीं होगा डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ कफ टेयर कन्फर्म बाय इमेजिंग। अगर इमेजिंग से भी हमें पता चल रहा है तब भी अगर वो एसिम्टोमेटिक है तो द पेशेंट इज़ नॉट ए सर्जिकल रिपेयर इज़ इंडिकेटेड। प्रोसीजर क्या होगा हमारे पास? देयर आर सेवरल ऑपरेटिव ऑप्शंस फॉर रिपेयरिंग ए टॉर्न रोटेटर कफ जिसके अंदर हमारे पास ऑर्थोस्कोपिक ओपन एंड द मिनी ओपन रिपेयर्स हैं। डिसीजंस अबाउट विच प्रोसीजर टू चूज डिपेंड अपॉन द सेवेरिटी एंड द लोकेशन ऑफ द टेयर, नंबर ऑफ द टेंडन्स इन्वॉल्व, extent of associated lesions, type of the onset, quality and the mobility of the torn tissue, bone quality, patient related considerations पे डिपेंड करता है, सर्जन प्रेफरेंस एंड दी ट्रेनिंग। ये सब फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं कि कौन सा प्रोसीजर हमने यूज़ करना है। टाइप्स ऑफ रिपेयर। टाइप्स ऑफ कफ रिपेयर इज़ टिपिकली क्लासिफाइड बाय सर्जिकल अप्रोच and technique used. There are 3 categories of repair: arthroscopic, mini open, second is the mini open, third हम बाद में देखेंगे। arthroscopic approach, the entire procedure is performed arthroscopically and require only a few small skin incision for inserting surgical instrument। इसके अंदर हम क्या करेंगे? स्मॉल स्किन इंसिजन का यूज़ करेंगे। मिनी ओपन अप्रोच में क्या करेंगे? दे आर द 2 वेरिएशंस ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर बोथ ऑफ विच इन्वॉल्व ऑर्थोस्कोपिक सबएक्रोमियल डिकम्प्रेशन एंड डेल्टॉइड स्प्लिटिंग अप्रोच। ये 2 अप्रोच हम इन 2 का यूज़ करेंगे। इन वन वेरिएशन ओनली सबएक्रोमियल डिकम्प्रेशन इज परफॉर्म ऑर्थोस्कोपिकली, whereas in other variation a portion of cuff repair itself also performed arthroscopically. In both cases anterior-lateral incision means cut is made at the acromion and is extended distally along the fiber orientation of the deltoid is split longitudinally, मतलब लेंथ वाइज उसको हम स्प्लिट करेंगे between is anterior
and middle portions to allow visualization of the cuff tear without detaching the deltoid from its proximal insertion. उसको हम डिटैच नहीं करेंगे. थर्ड अप्रोच जो हमारे पास है वो हमारे पास है ट्रेडिशनली ओपन अप्रोच. Anterior lateral incision is the made that extend obliquely from middle one third of the inferior aspect of the clavicle across the coracoid process of the scapula and to the anterior aspect of the proximal humerus. Proximal insertion of the deltoid must be detached. इसके अंदर हम डिटैच करेंगे and reflected for exposure of operative field during an open subacromial decompression and the cuff repair. After the cuff repair is complete, जैसे ही जो रोटेटर कफ रिपेयर हो जाएगा उसमें हीलिंग हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, डेल्टॉइड इज़ द रीअटैच टू द एक्रोमियन. डेल्टॉइड को हम क्योंकि हमने इसमें डीटैच किया था तो अब रीअटैच करेंगे. As arthroscopic repair technique have advanced, the use of traditionally open approach has decreased. तो इसका यूज़ जो है वो डिक्रीज हो गया जैसे ये टेक्निक्स जो है इसमें एडवांसमेंट आई है. कंपोनेंट्स क्या होंगे रोटेटर कफ टेयर के? Regardless of the approach, subacromial decompression is performed before repair of the cuff is undertaken. After tear is visualized, margins of the torn tendon are debrided and released from any adjacent soft tissues. उसको हम क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे. Cuff tendon is then mobilized for advancement and apposition to bone that has been prepared for the sutures and attached by tendon. उसको हम tendon के साथ attach भी करेंगे to the bone fixation. Depending on whether an arthroscopic or mini open approach is used, कि हम कोई भी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं चाहे वो आर्थोस्कोपिक हो और मिनी ओपन अप्रोच हो, फिक्सेशन इज accompanied by the sutures and suture anchors. In addition to the subacromial decompression, other concomitant procedure may be required. दूसरे प्रोसीजर भी हमें रिक्वायर हो सकते हैं during the procedure. For example, capsular tightening or labral reconstruction may be performed. हम उसको भी परफॉर्म कर सकते हैं if unidirectional or multidirectional instability of GH joint अगर होगी तो उसमें हम कैप्सुलर टाइटनिंग और लेबल रिकन्स्ट्रक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं. बिकॉज degenerative changes in the tendon of the long head of the biceps brachii are often associated with the chronic rotator cuff disease. रिपेयर ऑफ दिस टेंडन जो है वो क्या होगा हमारे पास नेसेसरी होगा कि हम बाइसेप ब्रैकाई का टेंडन को रिपेयर कर लें. अब हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर की सिलेक्शन है. Surgeon have many factors when determining which type of procedure is more appropriate for the patient. Surgeons के पास बहुत से options होते हैं कि कौन सा procedure यूज़ किया जाए. One such consideration is the severity of the tear. Depend करता है severity पे, including thickness, size and the number of the tendon torn. Depend करता है क्या thickness size है और कितने tendons का torn हुआ है. There are the 4 journal accepted categories that describe the longitudinal size of the rotator cuff tears: small, medium, large and massive. Small की बात की जाए तो partially thickness full tear is usually managed surgically with a full arthroscopic approach to debride the frayed margins of the torn tendon and include subacromial decompression. Torn portion जो होगा टेंडन का may or may not be repaired. ज़रूरी नहीं है हम उसको रिपेयर करें क्योंकि जो है जो हमारे पास टेयर है वो क्या है स्मॉल है तो मे बी उसको कोई रप्चर ना हुआ हो. हिस्टोरिकली स्मॉल एंड मीडियम फुल थिकनेस टेंडन टेयर्स ओनली वर मैनेज विद द फुल आर्थोस्कोपिक अप्रोच. इसको हम फुल आर्थोस्कोपिक अप्रोच से मैनेज करते हैं विद एडवांसमेंट ऑफ द आर्थोस्कोपिक टेक्निक्स. जैसे इन टेक्निक्स में एडवांसमेंट आई है एंड इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ फुल large thickness tear and the some massive tears are now also managed with full arthroscopic approach. तो इसके साथ ही हम full thickness tears को भी और massive tears को भी इसी टेक्निक के साथ हील करते हैं, उनको इसी टेक्निक्स के का यूज़ करते हैं उनमें भी. Despite these surgical advances, variations of the mini open approach often remain the surgeon choice. तो मिनी अप्रोच ही सर्जन की चॉइस है फॉर द रिपेयर ऑफ मीडियम एंड द लार्ज टेयर्स. इवन सम मैसिव टेयर्स आर मैनेज विद डेल्टॉइड स्प्लिटिंग अप्रोच. मैसिव टेयर्स को हम डेल्टॉइड स्प्लिटिंग अप्रोच से भी मैनेज करते हैं.
ट्रेडिशनल ओपन अप्रोच रिक्वायरिंग डिटैचमेंट, ट्रेडिशनल के अंदर हमने पहले भी पढ़ा, उसके अंदर हम डिटैच करेंगे एंड द रिपेयर ऑफ द डेल्टॉइड, और फिर उसको डिटैच करेंगे, is now primarily reserved for the repair of the multiple tendon tears associated with the extensive injury to the shoulder। अगर extensive injury हो चुकी है, multiple tendon tears हैं, तो उसके अंदर हम ट्रेडिशनल ओपन अप्रोच का यूज़ करते हैं। लोकेशन ऑफ कफ टेयर, amount of retraction and the mobility of the full thickness tear and the quality of remaining tendon and the underlying bone also influence the surgeon selection of the प्रोसीजर एस्पेक्टेड टू दी मोस्ट इफेक्टिव। तो ये सर्जन की चॉइस होती है, डिपेंड अपॉन द सेवेरिटी, क्वालिटी ऑफ द रिमेनिंग टेंडन, एज रिलेटेड अगर कोई डिजेनरेटिव चेंजेस हैं तो कौन सा प्रोसीजर यूज़ किया जाए। वेयर एज स्मॉल मीडियम एंड लार्ज टेयर्स ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस आर रूटीनली मैनेज विद द आर्थोस्कोपिक। उसको हम किससे मैनेज करते हैं, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस के टेयर्स को आर्थोस्कोपिक और मिनी ओपन अप्रोच टेयर्स ऑफ जो सबस्कैपुलरस होते हैं वो हम मैनेज करते हैं मोस्टली विद दी ट्रेडिशनल ओपन अप्रोच। आल्सो विद पुअर टिश्यू क्वालिटी, अगर टिश्यू क्वालिटी पुअर है और सिग्निफिकेंट रिट्रैक्शन एंड लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ द टॉर्न टेंडन, मैनी सर्जन बिलीव दैट ए स्ट्रॉन्गर रिपेयर कैन बी अचीव्ड विद एन ओपन प्रोसीजर इंस्टेड ऑफ ए आर्थोस्कोपिक रिपेयर। तो आर्थोस्कोपिक रिपेयर की बजाय हम उसको ओपन प्रोसीजर से रिपेयर करते हैं। अब सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात की जाए तो आफ्टर सर्जिकल रिपेयर ऑफ ए टॉर्न रोटेटर कफ टेंडन, मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिसीजन अबाउट द पोजीशन एंड द ड्यूरेशन ऑफ द इमोबिलाइजेशन सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ द एक्सरसाइजेस के हम उस एरिया को कितने ड्यूरेशन तक इमोबाइल करना है, सिलेक्शन एंड द एप्लीकेशन ऑफ एक्सरसाइजेस एंड द रेट ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ ईच पेशेंट, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, हर पेशेंट का रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, ड्यूरेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ एक्सरसाइजेस, ये सब जो है वो डिफरेंट होता है। देयर इज़ लिटिल consensus in the clinical practice as to how and to what extent each of these factors singularly or collectively impact the decisions made by surgeons and a therapist about a patient post-operative rehabilitation program। ये डिसीजन जो होता है वो हमारे सर्जन्स और फिजियोथेरापिस्ट का वर्क होता है। Hence predetermined guidelines and protocols for post-operative management after rotator cuff repair are diverse and sometimes contradictory. For example, some authors suggest that if deltoid detachment and repair are components of the surgery, deltoid strengthening exercises should be postponed for approximately 6 to 8 weeks। अगर हमने deltoid को डिटैच किया है और उसके बाद उसको रिपेयर किया है तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज deltoid की आफ्टर द सर्जरी हम उसको पोस्टपोन कर देंगे 6 to 8 वीक्स के अंदर। वो क्यों करेंगे, जब तक जो है वो डेल्टॉइड हील नहीं हो जाता तब तक उसकी हम स्ट्रेंथनिंग नहीं करवाएंगे। इन कंट्रास्ट सम अदर ऑथर सजेस्ट दैट रिहेबिलिटेशन शुड बी प्रोसीड सिंगुलरली रिगार्डलेस ऑफ द वेदर डेल्टॉइड detachment was required so long as secure fixation of the deltoid was achieved। There are a variety of surgical options available and so single post-operative program can be used for all the patient or yield better result than the other। हर पेशेंट का जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्राम, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है वो डिफर करता है अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स। Therefore, to meet each patient need and goals, therapists can use published protocols or those developed at individual clinical facilities as general guidelines for the post-operative management। Modifications to protocols and guidelines should be made based on the ongoing examination of the patient response to interventions and through communication with the surgeon। ये डिपेंड करता है थेरेपिस्ट का सर्जन से कम्युनिकेशन होता है जिससे, और पेशेंट की नीड पे, अगर कोई एथलेटिक है पड़ा पेशेंट तो उसकी एक्सरसाइज प्रोग्रेशन ज़्यादा होगी, अगर कोई एल्डरली पेशेंट है तो उसने जस्ट अपनी डेली एक्टिविटीज़ पर ही फोकस करना होगा। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की क्या नीड है।
डिस्पाइट वेरिएशन अमंग पोस्ट ऑपरेटिव प्रोग्राम्स, 3 कॉमन एलिमेंट्स जो कि हम देखते हैं। अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव मोशन ऑफ द जीएच जॉइंट, हम उसकी मोशन करवाएंगे ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की, शोल्डर जॉइंट की, कंट्रोल ऑफ द रोटेटर कफ फॉर डायनामिक स्टेबिलिटी। एंड थर्ड इज द ग्रेजुअल स्लोली मीन्स रिस्टोरेशन करेंगे स्ट्रेंथ एंड द मस्कुलर एंड्योरेंस। इमोबिलाइजेशन की बात की जाए, फर्स्ट पोजीशन एंड द ड्यूरेशन ऑफ इमोबिलाइजेशन ऑफ द ऑपरेटेड शोल्डर, हम उसको इमोबाइल करेंगे आफ्टर रोटेटर कफ रिपेयर डिपेंड अपॉन द मैनी फैक्टर्स। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, इंक्लूडिंग द साइज, severity and the location of the tear and the type and the quality of the repair. Size of cuff tear partially determine whether the patient operated arm is bolted in a sling or in abducted arthrosis or splint. हम उसको इमोबाइल करने के लिए स्लिंग्स स्प्लिंट्स वगैरह का आर्थ्रोसिस का यूज़ करेंगे। पेशेंट्स bolted in an abduction splint may require assistance from a family members, फैमिली मेम्बर्स की उसको भी असिस्टेंट की ज़रूरत होगी क्योंकि ज़ाहिर है उसका भी रिसेंटली ही उसकी सर्जरी हुई है। स्पोल्ट द ऑपरेटेड आर्म इन द 45 डिग्री शोल्डर पोजीशन व्हेन द स्प्रिंट इज रिमूव फॉर द एक्सरसाइज के लिए, बाथिंग वगैरह के लिए अगर उसने कोई काम करना है तो उसके लिए उसका स्प्रिंट रिमूव कर दिया जाएगा। इन द एबडक्टेड पोजीशन शोल्डर इज इन ए मोर रिलैक्स न्यूट्रल पोजीशन। एबडक्शन के अंदर जब आर्म जो है वो थोड़ा सा बॉडी से अवे मूव कर रहा होता है, दिस इज द एबडक्शन। तो इसमें जो है वो कह रहे हैं कि मोर रिलैक्स पोजीशन है, न्यूट्रल पोजीशन है, रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिफ्लेक्सिव मसल कंट्रैक्शन दैट कुड डिस्टर्ब द रिपेयर्स। इन एडिशन सपोर्टिंग द आर्म इन एबडक्शन रिड्यूस टेंशन ऑन द रिपेयर टेंडन्स के ऊपर जो टेंशन है वो रिड्यूस हो जाएगी एंड मे आल्सो इम्प्रूव द ब्लड फ्लो टू द रिपेयर साइड, और जो है वो ब्लड फ्लो उस साइड की तरफ इंक्रीज हो जाएगी जिससे हीलिंग क्या होगी, फास्ट होगी। And this is the end of my lecture. I definitely sure that you enjoyed this video. Next we will study its exercise progression. Thank you.